نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے شہر بنگلور کے غیر مسلم اکثریتی علاقہ متی کیرے کی مسجد طٰہٰ انتظامیہ کی جانب سے سیرت النبی بعنوان پیغمبر اسلام کی زندگی، امن و بھائی چارے کا پیغام پروگرام کا مسجد کے احاطے میں منعقد کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ امن کے پیغام کو عام کرنے کے تئیں مسجد کے احاطے سے مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں پرندوں کو آزاد کیا گیا اور مسجد کے دروازوں پر کنڑا زبان میں انگریو کیے گئے قرآن مقدس کی آیات کا افتتاح کیا گیا۔ الحمدللہ بار کرنا کمیونل ہارمونی اور شانتی مت سوہاردتے حضور کے پیغام میں کیا ہے؟ آج بہت ضرورت ہے امن اور شانتی۔ حالات جو یہ ہو رہے ہیں ذرا سمجھداری سے کام کرنا ہماری قوم، اور ان کو جو ہمارے مولانا بڑے بڑے ادارے ہیں صرف فنکشن ایسا کو اویئرنیس کرنا، جو فنکشن کرتی ہے حساب سے کرنا، کیسا میں بھائی چارے کو لینا۔ اب ہمیں الحمدللہ آج ಕಬೂತರ ಉಡಾನೆ ಕಿ ತೃಷ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದಿದೆ। ಕುರಾನ್ और ಹದೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಹೃದಯಗಳು ಶಾಂತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ। ಸಂತೋಷ ಹರಡಿರಿ, ದ್ವೇಷ ಹರಡದಿರಿ, दुश्मनाई को खत्म करो, प्यार को बढ़ाओ। ऐसे हुजूर के कुरान के जो आयत हैं कन्नड़ा में हमें डिस्प्ले करे। मौलाना इमरान मसूद साहब और हमारे बेली मठ के स्वामी जी, हमारे पूरे कमेटी के नौजवान, पूरी बैतुल माल कमेटी, मेन कमेटी, पूरे लोगों ने बहुत मेहनत करके सक्सेस किए। मुझे बहुत तसल्ली है। दरअसल आज के तनाजुर में मीलाद की महफिलें ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ से न सिर्फ अहले ईमान बल्कि गैर मुस्लिमों तक भी इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है और नबी करीम का उसवा हसना है वो पहुँचे। यहाँ एक बड़े ही बरगजीदा स्वामी जी आए थे, उन्होंने नबी करीम के उसवा हसने की मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली और यहाँ न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी कसीर तादाद में मौजूद थे। तो इस तरह से मजहबी महंगी के एतबार से अगर हम देखें तो इस तरह की जो तकरीबात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जहां शोर लहू लहब ना होते हुए और किसी तरह की फ़िरक़ावारियत को रंग दिए बगैर इस्लाम के अमन और शांति के पैगाम को आम करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, ये लायक मुबारकबाद है। इस मौके पर बेली मठ के शिवरुद्र स्वामी और मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने अपने खिताबात में रसूलुल्लाह की सीरत पर गहरी रोशनी डाली। कहा कि प्यारे नबी की तालीमात हर आम व खास के लिए मिशअल राह हैं और आवाम से अपील की कि प्यारे नबी की सीरत के अनावीन पर इस तरह के प्रोग्राम्स का मसाजिद में इनेकाद किया जाए ताकि फिरका परस्त ताकतों के डिविसिव एजेंडे को नाकाम करते हुए मोहब्बत व उखवत को आम किया जा सके। ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸಿದರು। ಅವರು ಮಕ್ಕಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಸ ಸುರಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಒಳ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ತಾವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಸೂಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಾಧಿಕ್ಕಂತನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಗಳಿಸಿದರು। ಕೊನೆಗೆ
ಈ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಒಂದು 100-200 ಜನ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇವರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1,000 ಜನ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ 100 ಜನ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು 1000 ಜನರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯುದ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಂಗೆ ಬದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಂಗೆ ಬದರ್. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಇದು ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ಉಮೇದಿನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದರಿಗೂ ಸಹ ಏಟಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಜಂಗೆ ಅಹುದ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हादी भी हैं, रास्ता बताने वाले भी हैं। और हमारे स्वामी जी साहब ने ग़ज़वा बदर का भी जिक्र कर दिया, ग़ज़वा उहद का भी जिक्र कर दिया, और इसी तरह सुलह हुदैबिया का भी जिक्र कर दिया। बहुत सारी बातों को हमारे सामने जिक्र करके ये बताना चाहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमन व अमान को कायम करने के लिए इन तमाम बातों पे अमल करके दुनिया के सामने बता दिया कि यहाँ जो पुलिस है वो इस वजह से है ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। यहाँ जो अदलिया निजाम है वो इसलिए है ताकि यहाँ जो मजलूम है उसको इंसाफ मिल सके। कोर्ट न हो ये नहीं मुमकिन, पुलिस निजाम ना हो ये नहीं मुमकिन। मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी मिलिट्री का होना, नेवी का होना, एयरफोर्स का होना ये जरूरी है। हम ये ना समझें कि इस पर हमारा पैसा जाया हो रहा है। मुल्क की हिफाजत के लिए इन सारी चीजों का होना बेहद जरूरी है। माशाअल्लाह हमारा ये मुल्क बड़ा महान मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले यहाँ रहते हैं, हर एक अपने अपने मजहब पर अमल करता है। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि एक ही जगह में मस्जिद भी है, एक ही जगह में मंदिर भी है। वहाँ घंटियां बजती हैं, यहाँ अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद होती हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमारे इस मुल्क के लिए खुसूसियत अता किया है कि यहाँ सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन चंद लोग जो बिल्कुल फिरका परस्त होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे दरमियान में दरार पड़ जाए और हम आपस में लड़ मरे और एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। ये छोटी सी कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के ये स्वामी जी हो, ये हमारे पादरी हो, ये हमारे गुरुद्वारा के वहां के अहम लोग हो, और इसी तरह हजरत उलमा और मुफ्तियान इकराम हो, ये सब मिलकर इस मुल्क को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अखलाक पेश किए कि आपने जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मीसाक़ मदीना फरमाया। इस मौके पर साबिक प्राइम मिनिस्टर के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैयद अशरफ व कर्नाटका चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद ने कहा कि मीलादुन नबी को निहायत खुशदिली व मजहबी जज्बे के साथ मनाया जाए और हर किस्म के इश्तिआल अंगेज तस्वीर कशी और होर्डिंग्स से परहेज किया जाए कि ऐसी चीजें नाखुशगवार वाकयात और तशद्दुद का बायस बन सकती हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत है
यहाँ पर जो सीरतुन नबी का जो जलसा रहा उसमें सारे मजहब के लोगों को बुलाया गया। स्वामी जी ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में काफी अच्छी तरीके से बात रखी। उसके साथ साथ प्रोफेसर लक्ष्मण साहब ने भी अच्छी बात रखी और इमरान मसूद साहब का खुसूसी बयान भी बहुत अच्छा रहा। बस यही चाहिए कि जो भी सुनने के लिए आते हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए। अगर उस पर अमल होगा तो मैं समझता हूँ कि काफी से फायदा होगा और बड़ी हद तक माहौल बदलेगा। पीटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार।